Okay, we're good. We can start. Okay, so thank you all for joining today. And obviously न्यू ईयर सेलिब्रेशंस और उसके साथ ही हम एक नए कैरियर के ऊपर बात करने के लिए आज हम बैठे हुए हैं. So it's an open session. First of all, you can ask any question that you want with regards to this banking career. You can share your opinion as well. You can share your viewpoint as well, your experience as well, and then we can have a collective discussion on this issue, on this topic. So the way I have made this presentation, so I'll just talk about very little about myself, how I came into this sector, how I went ahead into this sector, and what are my areas of expertise. So very little about that. Then we will be discussing about that, who is a banker as per you, who is a banker. Then we will talk about how to become a banker. So what's the route, what's the available resources, or how you can be a banker. And then we will be specifically talking about the compliance field, which I have been working for the last 11 years. And then we will be talking about the regulatory compliance program that we have developed with the help of industry specialists, and the main objective of Atletica as well, to be developing those courses which we can connect with the industry, and we can connect our students who are just coming out, or who are just being part of the who just came into the their professional experience. So how to connect and bridge this gap between the academia and the industry. So we will be talking about a little bit about that course as well. So about myself, I started off with Heller College of Commerce. I completed my graduation from there in 2008. So I was also told that few of the participants are from Punjab University, so they are my alma maters. So I completed my graduation, 4-year graduation from Punjab University, Heller College of Commerce in 2008. And then after that, I basically, after completion of my graduation and having some internship, so I then joined the State Bank of Pakistan. So as far as my professional studies are concerned, so I did some professional qualifications, some professional courses from USA. So these really helped me in growing myself towards the towards my professional career. As far as my employment opportunities, or I've been part, I started off my career with State Bank of Pakistan. So I was there for 6 years. I was the deputy director over there. And then I switched towards the banking side, the commercial banking side, you can say. So I joined Standard Chartered as the director compliance. Then I joined UBL. So I was also over there as the divisional head compliance, and currently I am working with the as a chief compliance officer at ICBC Pakistan, which is a foreign bank. It's a Chinese foreign bank. So this is a very small how I progressed through my career. So I started off in 2010, and we are in 2022. So it's, you can say, 12 years my career has expanded over a period of 12 years post my studies. So this is all about me. So now I think we can go into this core session. So participants, I would like to hear from you as well, whether who are connected through this Zoom session or they are at the Facebook Live. So I would like to ask you that, for you, who is a banker? आपके इर्द गिर्द किस तरह के कौन कौन से बैंकर्स आपको नजर आते हैं? I would like to take your opinion. I'll start with Bilal, and then we can move one by one. Okay, so typically in our society के बैंकर को देखा जाए तो माइंड में यही आता है कि अकाउंट्स और जो है वो लेके आ रहे हैं, जो डिफरेंट मार्केटिंग पर्सन हैं, एक उनको दिया जाता है, इतना उन्होंने पूरा इकट्ठा करके उन्होंने लेके आना है. बट इट नॉट जस्ट अबाउट दैट.
बैंकिंग ये एक की ना एक फाइनेंशियल पूरा इकोसिस्टम है बेसिकली यू आर जो है आप फाइनेंशियल चैनल कर रहे हैं पूरे कंट्री के मनी को इनटू समथिंग गुड, जिससे ओवरऑल कंट्री के वो बेनिफिट करे। तो बेसिकली हम जो बैंकिंग सेक्टर है वो पूरे मुल्क में जो फाइनेंशियल एक कैश फ्लो होता है उसको वो जो है एक सही जगह पे वो एक ट्रैक देता है, उसको फ्लो बनाता है उसका, ताकि वो कंट्री आगे प्रॉस्पर करे, उसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले। तो इसमें ये मेरी है इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है बैंकिंग बिल्कुल की। सही है। तो बैंकिंग के वो तो आपने बिल्कुल बता दिया, लेकिन बैंकर आपकी नजर में आपने कहा कि ऐसा बंदा जो कि डिपॉजिट्स लेके आए और जो अकाउंट्स वगैरह जो है वो ओपन करे। राइट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बिलाल, बिल्कुल सही है। थैंक यू बिलाल, थैंक यू। ओके, तो काशिफ, सो हु इज अ बैंकर टू यू? ऑब्वियसली आप अपने इर्द गिर्द भी लोग देखते होंगे, आपके हो सकता है आपके फादर, आपका भाई, आपका कजन, आपका कोई दोस्त। सो आप अपने इर्द गिर्द जो बैंकर्स देखते हैं वो किस तरह के जॉब रोल्स के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं? काशिफ, अगर आप बताएं कुछ। जी, sure, sir. So, frankly speaking, sir, in my perception, there are two types of bankers. Like, एक तो वो होते हैं जो हम देख रहे होते हैं फिजिकली, जिनके पेरेंट्स होती है, लाइक जो डिफरेंट ब्रांचेस में होते हैं। somehow उनमें से कुछ हमारे रिलेटिव्स होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, लाइक रिलेशनशिप ऑफिसर हो गए, उसके बाद टेलर्स और इवन बीएम तक। बट एट द अदर हैंड, आई थिंक देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंकर। लाइक एक जो फिजिकली बैंक में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, जो सर्व कर रहे होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो इस स्ट्रक्चर को बना रहे होते हैं, लाइक बैकएंड पे जो वर्क कर रहे होते हैं, जो पॉलिसीज बना रहे होते हैं, जो एनालिसिस कर रहे होते हैं, लाइक फॉरकास्टिंग कर रहे होते हैं कि यार किस सेक्टर में हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए, और ये क्या इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स हो सकते हैं फॉर द फ्यूचर टाइम। तो इन माय परसेप्शन ये दो टाइप्स हैं। मैं एक टाइप से तो मिला हूँ बट अनफॉर्चुनेटली दूसरी से मेरी कोई खास लॉ रही नहीं है। बट ये है कि मुझे लाइक क्रेज है कि उनको जानने के लिए कि हाउ दे वर्क। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेरी गुड काशिफ, थैंक यू फॉर योर इनपुट। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, आई थिंक एसन इज द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। जी एसन। एसन, यू देयर? Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम। Good morning. गुड मॉर्निंग। Basically, sir, your question is about the who is the banker. Banker is a person जो deposits को accept करता है या facilitate करता है another persons को, like their money, their business dealings and their routine financial matters. They provide facility like exchange of money in other terms. So according to me, this person is known as a banker. And that's your ओके, question is about banker. Banker exactly is that. Otherwise, banking activity is much more better. obviously. Okay, so thank you for your input, Kashif. Thank you for your input, Bilal, and thank you for your input, Asan. So I think where I wanted to take this discussion, I think you have highlighted things in that direction as well. जिस तरह आपने कहा कि आपके इर्द गिर्द जो बैंकर है वो ब्रांच में काम करता आपको नजर आता है, आपके इर्द गिर्द जो बैंकर है वो आपको डिपॉजिट लेता नजर आता है, आपके इर्द गिर्द जो बैंकर है वो आपको बैंक जाते हैं तो वो आपको पैसे गिन के आपके हाथ में देता है, आपका चेक जो है वो काटता है, आपका अकाउंट ओपन करता है, आपकी यूनिवर्सिटी की फीस जो है वो जमा करवाता है। सो दिस इज द बैंकर्स दैट यू सी all around, and these are all bankers. There's no second opinion, or there is no second opinion about that these are all bankers as well. But आज हम उन बैंकर्स की बात नहीं करेंगे जो कि आपने जिसकी तरफ काशिफ ने भी बात की थी कि दूसरी साइड के जो बैंकर्स हैं, दूसरी साइड के जो कि पॉलिसी बनाते हैं, जो कि प्रोसीजर्स बनाते हैं, आज हम कुछ उनकी बात करेंगे। आज जो ब्रांच के अंदर एक स्टाफ बैठा हुआ है, जो ब्रांच के अंदर जिस तरह मैंने कहा वो अकाउंट ओपन कर रहा है आपका, वो आपका दूसरे प्रोसेसेस कर रहे हैं, तो उनकी आज हम बात थोड़ी कम करेंगे। और आज हम बात करेंगे जो जिस तरह काशिफ ने कहा दूसरी तरह के बैंकर, जो सेकेंड टाइप ऑफ बैंकर्स है। So let me unveil this thing
कि ये सारे भी जो लोग मेरे आपके सामने आज, और ये भी बहुत थोड़े रोल्स लाए, विच कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट ये सारे लोग भी जो हैं वो भी बैंकर्स ही हैं। जिसमें हमारे पास अगर हम फाइनेंस साइड की बात करें तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है, CFO, वो भी एक बैंकर होता है। फाइनेंशियल कंट्रोलर जो होता है, वो भी हमारे पास एक बैंकर होता है। जो हमारा चीफ चीफ रिस्क ऑफिसर है, वो भी बैंकर होता है। क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट जो होता है, जो क्रेडिट रिस्क जो कि हमें लोन्स वगैरह, जब हम भी कोई बैंक से कोई लोन वगैरह लेते हैं, सो क्रेडिट रिस्क जो है वो उस लोन को एनालाइज करता है, देखता है कि यार ये लोन जिस बंदे को मैं दे रहा हूँ, ये पार्टी जो है, ये कस्टमर जो है वो ठीक है कि नहीं है, रीपे कर सकेगा लोन के नहीं कर सकेगा। सो वो भी क्रेडिट बैंकर होता है। जो ट्रेजरर होता है, जो कि बैंक की ट्रेजरी को एक चला रहा होता है, वो भी बैंकर होता है। इसी तरह हमारे पास कॉर्पोरेट बैंकर्स भी हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। सो ये सारे भी जो हैं, दीज आर द अदर साइड ऑफ द बैंकर्स, जो कि शायद आपको इतना आपकी इनसे मुलाकात जो है वो ना होती हो या आपको सुनने में ना आता हो, बट दीज आर ऑल, एंड एज आई सेड बिफोर, ये बहुत थोड़े मैं प्रोफाइल लाया, बिकॉज it will be then covering slides after slides after slides if I start writing the job designations of the bankers over here. So it's just to consolidate, just to give you a second flavor about it कि यार ये भी बैंकिंग के अंदर रोल्स हैं। इसमें से कुछ तो ऑब्वियसली बहुत सीनियर रोल्स होते हैं, और कुछ जो है वो आप लोग जब अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं, तो ये जिस तरह क्रेडिट एनालिस्ट है, डीलर्स हैं, ट्रेड ऑफिसर्स हैं, सो ये सारे रोल्स जो हैं, ये आपको ये सारे के सारे आपके जो आपके फ्रेश ग्रेजुएट्स के रोल्स हैं, वो सारे के सारे ये रोल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं जब अगर आपने अपना ब्रांच बैंकिंग से अगर आपने अपना कैरियर स्टार्ट नहीं करना, एंड यू वांट टू स्टार्ट योर कैरियर एज फ्रॉम द हेड ऑफिस साइड और फ्रॉम द रीजनल ऑफिस, तो आपके पास ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो अवेलेबल होती है। फिर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आजकल बैंक्स का, लास्ट 3-4 सालों के अंदर बहुत ज्यादा जिस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा काम हुआ है, वो कंप्लायंस का एरिया है। कंप्लायंस क्या होती है, उसके क्या फंक्शंस हैं, क्या रोल्स हैं, ऑब्वियसली हम उसको थोड़ी देर के अंदर डिस्कस करेंगे। बट एक जनरली, जिस तरह अगेन मैंने बात की कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, मनी लॉन्ड्रिंग जो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा आजकल के हवाले से, FATF के बारे में शायद आपने सुना हो, अखबारों में पढ़ा हो, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बहुत कुछ आपने सुना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आपने हो सकता है अखबार में, टीवी में, मूवीज देखी हो आपने, बहुत कुछ आपने बैंक्स के बारे में सुना होगा। सो वो मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर भी जो है, जो कि एक बैंक के अंदर जितनी भी टेस्ट मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से चीजें हो रही होती हैं, उनको रोकने के हवाले से आपने फेक अकाउंट्स सुने होंगे, आपने शायद फालूदे वाला अकाउंट सुना होगा, आपने इस तरह। तो ये सारे के सारे जो अकाउंट्स हैं, ये सारे के सारे, इनको जो इंश्योर करता है कि यार बैंक्स के पास इस तरह की चीजें ना आए, सो वो भी एक मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर का वो रोल होता है, तो वो भी एक बैंकर होता है। सो ये भी एक बैंक के अंदर रोल है। फिर इसी तरह उसकी टीम में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर्स होते हैं। अगेन ऑफिसर लेवल जो है वो बैंकिंग में जनरली स्टार्ट का, जहां से आप अपना करियर स्टार्ट करते हो, वो रोल है। और फिर हमारे पास रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑफिसर्स भी होते हैं, और रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑफिसर्स ऑब्वियसली हमारे पास वो सारे लोग होते हैं जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करवा रहे होते हैं कि एक बैंक के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है बैंक एक बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस के हवाले से एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जिसको आप बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को रख के चलाते हैं। कि जी ऑब्वियसली अगर आप एक चेक बुक देखते हो तो उसका बड़ा एक पर्टिकुलर साइज होता है, उसकी हर चीज जो है वो एक बड़ी पर्टिकुलरली वो लिखी गई होती है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है तो वो बड़ा एक खास डॉक्यूमेंट होता है। ये सारी की सारी चीजों को इंश्योर करना कि यार ये सारी चीजें जो हमारे सामने है, जब आप अकाउंट ओपन करवाने जाते हो तो आपसे आपका आईडी कार्ड भी मांगा जाता है, आपसे जो है वो आपके पे स्लिप भी हो सकता है मांगी जाती हो, या अगर आप स्टूडेंट हो तो आपसे स्टूडेंट कार्ड भी मांगा जाता है। सो ये सारा काम जो है, ये जो इंश्योर करवाना है कि ब्रांच में जो है वो आईडी कार्ड की कॉपी भी ली जाए, ब्रांच में जो है वो बाकी सारी चीजें भी रेगुलेशंस के मुताबिक चलें।
सो ये सारे का सारा रोल जो होता है वो होता है आपका रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑफिसर का या जनरली कंप्लायंस डिपार्टमेंट का। सो ये आपको एक एक बताने का मकसद है कि आप जब एक बैंकर को सोचो तो सिर्फ उस बैंकर को मत सोचो जो कि एक आपकी ब्रांच के अंदर जो है वो बैठा हुआ है या आपसे इंटरेक्शन होता है उसका एज अ रिलेशनशिप ऑफिसर, या आपसे उसका इंटरेक्शन होता है एज एन अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर या एज अ टेलर जो आपको पैसे आपका चेक कैश करता है, वो भी बैंकर्स हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट ये एक और एम्बिट है, ये एक और एक वास्ट फील्ड है आपकी, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो जब आप अपना बैंकिंग कैरियर को देखो, आप एक्सप्लोर करो कि अच्छा यार अब मैंने आई हैव डिसाइडेड टू बी बैंकर। सो ये भी एक पूरी की पूरी आपके पास अब चेन अवेलेबिलिटी है, ये भी आपके पास एक 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 आप चैनल कह सकते हो आपके पास अवेलेबल है। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी आप कुछ करना चाहो सो प्लीज फील फ्री टू आस्क। नो सर। ओके ओके, वी कैन मूव फॉरवर्ड नाउ। ओके, सो अब हम थोड़ी बात करते हैं कंप्लायंस की, जो कि मेरी अपनी फील्ड है, जिसके ऊपर मैंने तकरीबन 11-12 साल जिसके अंदर जिस फील्ड में मैंने काम किया है। और कंप्लायंस फील्ड है क्या, कंप्लायंस फील्ड जो है उसके पैरामीटर्स क्या हैं, वो किस तरह आजकल एक बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर किस तरह कंप्लायंस फील्ड जो है वो किस तरह इंपॉर्टेंस हो के आ गई है। सो कंप्लायंस बेसिकली अगर हम बात करें तो बड़ी एक सिंपल अंदाज में एक सिंपल आप ये कह सकते हो कि जो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं एक एक बैंक के अंदर, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, और रेगुलेशंस जो है वो ऑब्वियसली हमेशा जो पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो इशू करता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हजारों की तादाद में रेगुलेशंस जो है वो इशू की हुई हैं। अगर आपने अकाउंट ओपन करना है तो उसकी रेगुलेशंस अलहदा हैं, आपने चेक बुक इशू करनी है तो उसकी रेगुलेशंस अलहदा हैं, आपने अगर क्रेडिट कार्ड किसी को देना है तो उसकी रेगुलेशंस अलहदा हैं, अगर आपने किसी को कार लोन देना है तो उसकी रेगुलेशंस और अलहदा हैं। इसी तरह अगर आपने ब्रांच सेटअप करनी है तो उसकी रेगुलेशंस अलहदा हैं, आपने अगर बैंक सेटअप करना है तो उसकी रेगुलेशंस अलहदा हैं। सो एक बैंक के ऊपर अगर हम देखें तो हजारों की तादाद में रेगुलेशंस जो है वो एप्लीकेबल होती हैं। और कंप्लायंस का क्या काम है, कंप्लायंस का बेसिक काम ये है कि कंप्लायंस ने ये इंश्योर करना है कि वो जितनी भी रेगुलेशंस हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो सारी की सारी कंप्लाई हो रही हैं, सारी की सारी रेगुलेशंस जो हैं वो बैंक्स में इम्प्लीमेंट जो है वो हो रही हैं। सो इससे आप अंदाज, और ऑब्वियसली अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, इसी तरह है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो और एक ग्रीन सिग्नल आता है, रेड सिग्नल आता है, आप उसको क्रॉस कर देते हो तो क्या होता है, आपके ऊपर फाइन होता है। क्यों फाइन होता है? क्योंकि जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए थे कि आपने रेड लाइट के ऊपर स्टॉप करना है, आपने उस रेड लाइट को फॉलो करना है, अगर आप उसको ब्रेक करते हो तो आपके ऊपर क्या होता है, आपके ऊपर फाइन होता है। सो इसी तरह बैंक्स भी जब अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है तो बैंक्स के ऊपर क्या आता है, फाइन आता है। गाड़ी के ऊपर अगर आप या अगर आप ट्रैफिक लाइट को फॉलो करोगे तो हो सकता है आपको 500 रुपया चलान हो जाए, हो सकता है आपको 1000 रुपया चलान हो जाए। लेकिन जब यही काम एक बैंक करता है कि वो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, सो उसके ऊपर जो पेनल्टी लगती है या जो उसके ऊपर फाइन होता है वो करोड़ों में भी हो सकता है और सब केसों में अरबों में भी हो सकता है। इवन इन पाकिस्तान अगर मैं बात करूं, सो बिलियंस ऑफ रुपीस के फाइन जो हैं वो बैंकिंग इंडस्ट्री को, शायद आपने पढ़ा भी हो कि बैंकिंग इंडस्ट्री को फाइन्स वगैरह जो है वो लगते रहते हैं और बड़े हेवीली सिवियरली फाइन्स जो है वो लगते रहते हैं। सो बेसिक रोल यही है कंप्लायंस फंक्शन का कि आपने इंश्योर करना है कि बैंक्स को फाइन, बैंक के ऊपर पीनल एक्शन, बैंक के ऊपर पेनल्टीज जो है वो ना लगे। या प्लीज जस्ट गिव मी 1 मिनट। श्योर सर। देख के फिर मैं फोन करूंगा।
ओके, सो ये मेरा ख्याल है वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम होम से सेशंस का होता है कि साथ साथ आपके घर के काम भी चलते रहते हैं। सो बात मैं ये कर रहा था कि आपके जो बैंकिंग होती है, जो कंप्लायंस का बेसिक रोल है उसने ये इंश्योर करना है कि आपके जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, चाहे वो स्टेट बैंक ने बनाए हों या किसी और रेगुलेटर ने बनाए हों, वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो हो रही हैं, वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे सो ऑब्वियसली फिर उसके ऊपर पीनल एक्शन जो है या स्टेट बैंक जो है वो आपको फाइन्स जो है वो हैवी फाइन्स जो है वो लगाता है। और ऑब्वियसली जब फाइन होता है तो बैंक को वो एक एक्सपेंस के तौर पे पे आउट जो है वो करना होता है। तो ये बेसिक कंप्लायंस का रोल है टू इंश्योर दैट your bank does not get any financial aspect or does not have any penal action imposed by the regulator. So compliance department जो है वो एक किस्म का आपका बैकबोन के तौर पे काम कर रहा होता है with the in a banking industry. So compliance works as a backbone of the bank. और ऑब्वियसली इसका इंटरेक्शन जो है वो रेगुलेटर्स के साथ होता है, जितने भी हमारे रेगुलेटर्स हैं, खास तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सो कंप्लायंस का जो बेसिक एक इंटरेक्शन जो होता है वो रेगुलेटर के साथ होता है, तो आपको ऑब्वियसली उस पर भी बहुत ज्यादा इंश्योर जो है वो करना होता है। और पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो हैं वो जितने भी आपके कंप्लायंस में, जिस तरह हमारे कुछ पार्टिसिपेंट ने कहा कि दे आर ऑलरेडी they have worked in the bank or they have a part of the bank, so वो अंदाजा कर सकते हैं कि जितने भी आपकी पॉलिसीज प्रोसीजर्स या बाकी सारी चीजें आपकी रन करती हैं वो हमेशा जब तक कंप्लायंस का अप्रूवल उसके ऊपर नहीं आता है तो कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज प्रोसीजर्स को जो है वो इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं कर सकता है। तो दैट बेसिकली टेल्स यू द ओवरऑल इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लायंस एंड दैट बेसिकली टेल्स यू कि यार कितना कंप्लायंस का इंपॉर्टेंट और की रोल है। और यही चीज अब हमें नजर आ रही है जब हम जॉब्स की तरफ भी जाते हैं। तो पहले कहा जाता था कि यार कंप्लायंस जो है ना वो एक पोस्ट ऑफिस है कि वो एक जगह से चीजें पकड़ते और दूसरी जगह जो है वो चीजें रख देता है। बट अब पिछले 3 4 5 साल से बिल्कुल एक 180 डिग्री का हम कह सकते हैं चेंज जो है वो कंप्लाय इंडस्ट्री के अंदर जो है बैंकिंग इंडस्ट्री में आ चुका है, खास तौर पे कंप्लायंस के ऊपर, कंप्लायंस की फील्ड के अंदर। When I started off my career, तो I used to have let's say एक बैंक में मैंने काम किया तो उसकी टीम जो थी 1 साल के अंदर ही वो तकरीबन डबल हो गई स्ट्रेंथ के अंदर। दूसरे बैंक के अंदर जो हमारे बड़े बैंक्स हैं उनके अंदर एक एक दो दो साल के अंदर टीम्स जो हैं वो ट्रिपल साइज की हो गई। मतलब अगर पहले 100 लोग थे, so when I started off with UBL, so I had a team of 11 to 12 people, but when I left UBL, so I had a team of 33 people. So और वैसे भी, और ये एक 2 साल के अरसे के अंदर हुआ। सो जहाँ हमारे डिपार्टमेंट में, ओवरऑल कंप्लायंस डिपार्टमेंट में जहाँ हमारे पास 100 लोग होते थे, वो हमारे पास 200 300 लोग हो गए। और ये 300 नई जॉब जो है या 200 नई जॉब जो है वो क्रिएट हुई। और अगर हमारे पास बैंकिंग इंडस्ट्री में 40 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सो हर बैंक के अंदर जो है वो इसी तरह इंक्रीज आया। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हो कितना बड़ा एक जॉब का पूल जो है वो क्रिएट हुआ। और ये क्यों हुआ? ऑब्वियसली क्योंकि बैंक्स के ऊपर बहुत ज्यादा सिवियर फाइन्स आ रहे थे, बैंक्स के ऊपर सिवियर जो है वो पीनल एक्शन आ रहे थे। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए बैंक्स ने फिर अपना कंप्लायंस का फंक्शन जो है वो इंक्रीज किया। और मूविंग फॉरवर्ड भी जो है कंप्लायंस को डायरेक्शन जो है बैंक्स की वो अब कंप्लायंस की तरफ ही है। सो दैट बेसिकली टेल्स यू हाउ मच दिस सेक्टर हैज इंक्रीज्ड। जस्ट टू गिव, अच्छा अगर हम बात करें कि कंप्लायंस का एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, सो एक एक बहुत वास्ट या एक बहुत इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत हैवी हो सकता है। बट जस्ट टू गिव यू कि सबसे ऊपर इट्स द चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। देन दैट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हैव टू फर्दर यूनिट्स, जिसमें हमारे पास रेगुलेटरी कंप्लायंस का यूनिट होता है, एक हमारे पास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का होता है, और फिर उनके नीचे अपनी अपनी टीम्स होती हैं। और ये हर जो इस तरह जो मैंने दो दो सेक्शन बनाए हुए, अगर मैं इसको एक्सपैंड करता जाऊं तो ये हर एक के साथ सामने सामने 4 4 5 5 यूनिट जो है वो अलग अलग बन सकते हैं। So don't go into the verbiage of it, but just to give you how this things expands
सो वो आपको एक अंदाजा अच्छी तरह होता है कि यार ये किस तरह चीजें जो हैं वो एक्सपैंड करती हैं, किस तरह चीजें जो हैं वो कंप्लायंस के अंदर मूव कर रही हैं एज अ डिपार्टमेंट एरिया। सो दैट बेसिकली टेल्स यू कि यार इस डिपार्टमेंट के अंदर इस जगह पे काम करने का कितना ज्यादा जो है वो मार्जिन आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे अगर यहाँ तक कोई कंप्लायंस के हवाले से आपका कोई सवाल, कंप्लायंस के हवाले से कोई आप बात पूछना चाहो, सो प्लीज फील फ्री टू ऐड। क्लियर से No, sir. ओके, थैंक यू। ओके, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। अच्छा, एक काम जो मैंने ये किया कि जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट हाउ, एज आई सेड कि यार इंडस्ट्री किस तरफ जो है वो मूव कर रही है, इंडस्ट्री किस तरफ जो है वो जा रही है व्हेन इट कम्स टू द जॉब अपॉर्चुनिटीज। सो दिस इज समथिंग जो मैंने एक रिव्यू किया, और ये मैं 2021 की सिर्फ बात बता रहा हूँ जब हमारे पास सारा लॉकडाउन था, सब कुछ था। सो आई थिंक वन ऑफ द स्लाइड में है, हाँ सॉरी, ये एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड मिस कर गया था, जो कि आपको कनेक्टिविटी एक देगी कि रूट टू अ बैंकर, कि अगर आपने बैंकर बनना है तो उसका रूट क्या है, किस तरह आप जो है वो बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर आ सकते हैं। सो यार रूट जो है ना वो उसके अंदर दो हमारे पास रूट हैं। एक नॉन कैरियर डिफाइंड रूट है जिसके अंदर आप किसी ब्रांच में चले जाओ, आपका कोई हो सकता है आप किसी ब्रांच में गए, ब्रांच ने आपको टेलर रख लिया, ब्रांच ने आपको आरएम रख लिया और आपने स्टार्ट कर दिया, बट वो डिफाइंड रूट नहीं होता कोई कि किस तरह आपने ग्रो करना है, किस तरह आपने ऊपर जाना है। सो देयर इज नो डिफाइंड पाथ, डिवाइड आई मीन डिफाइंड पाथ जो है वो कोई नहीं होता अगर आप नॉन कैरियर डिफाइंड रूट्स में चले जाओ, और ये ज्यादातर आपको ब्रांच के हवाले से जॉब जो है वो मिलेगी। जो बैंक्स में डिफाइंड कैरियर रूट्स होते हैं, जिस तरह बैंक के मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें वो एक बड़े कंपेटिटिव प्रोसेस के थ्रू आपको हायर करते हैं, फिर आपको 5-6 महीने ट्रेनिंग करवाते हैं, फिर आपको जो है वो किसी एक पोजीशन के ऊपर डेजिग्नेट करते हैं। तो ये जितने भी आपके डिफाइंड कैरियर रूट्स होते हैं, जिस तरह मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं, रिटेल बैंकिंग कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं, कंप्लायंस ऑफिसर्स देमसेल्फ हैं, सो ये एक बड़ा डिफाइंड पाथ होता है, बड़ा इसके अंदर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, बहुत ज्यादा आपको जो है इसके अंदर इनपुट दिया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी टीम्स होती हैं जो कि फिर डेवलप करती हैं पूरे बैंक के अंदर। क्योंकि जो ट्रेनिंग ऑफिसर प्रोग्राम होता है या जो डिफाइंड कैरियर होता है उसका होता है कि जी हर साल, हर 2 साल के बाद इनको हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना है, इनको हमने ये करवाना है, और इवेंचुअली वो फिर उसका रूट होता है। जिस तरह आई स्टार्टेड ऑफ विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सो स्टेट बैंक का एक बड़ा program and that is known as the SABOTS training program, State Bank Officers Training Program. So I started off with that. तो उसका एक, और वो ऐसा उसकी beauty of that program है कि आप we start with OG2 grade officer and we can go up till the highest level of State Bank of Pakistan through that same route. Because why? Because वो career path defined है कि how you are going to move to the next ladder, आप क्या कहोगे। तो इसी तरह अब as I said कि the industry is, जिस तरह पहले मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स होते थे, जिस तरह रिटेल बैंकिंग के ऑफिसर्स होते थे, अब नाउ द इंडस्ट्री इज मूविंग टुवर्ड्स डेवलपिंग कंप्लायंस ऑफिसर, डेवलपिंग एएमएल ऑफिसर्स। सो ये मैंने सिर्फ 2021 के अंदर जो के कंप्लायंस ऑफिसर के बैच हायरिंग, कंप्लायंस ऑफिसर्स के जो डिफाइंड कैरियर पाथ के रोल्स ऑफर हुए 2021 के अंदर, ये सिर्फ उनमें से मुझे कुछ जो मिले मेजर मेजर बैंक्स के। तो जिस तरह ये बैंक इस्लामी है, सो बैंक इस्लामी ने ये तकरीबन बैंक इस्लामी बेसिकली आस्क फॉर देयर एरिया ऑपरेशन एंड कंप्लायंस ऑफिसर बैच। सो ये एक बैंक इस्लामी ने कहा कि हमें एरिया ऑफिसर्स और कंप्लायंस ऑफिसर्स के बैच जो है वो रिक्वायर्ड है। फिर यूबीएल इज अगेन, ये अगर आप देखो तो 25 मार्च का 2021 की इस साल का है, और एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है, फ्रेश ग्रेजुएट्स है, तो अगर आप इस, और ये कहाँ का है, कराची, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, ऑल अक्रॉस दी पाकिस्तान अगर हम देखें। सो ये भी आपके पास बैच हायरिंग की ही एक रोल है। और ऑब्वियसली जब आप ग्रेजुएट की बात करते हो जो कि यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, तो आपका जो पूल होगा आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो यार कितना फ्रेश ग्रेजुएट्स का जो हर साल का जो पूल है
वो कितना बड़ा होता है वो आप लोगों को मेरे से ज्यादा अंदाजा होगा कि हजारों या लाखों की तादाद में हर साल हर यूनिवर्सिटी जो है वो एक अपना बैच जो है वो लॉन्च करती है, अपना बैचेस जो है वो निकाल के आती है। तो पूल और कंपटीशन जो है वो आपको कितना ज्यादा होगा। इसी तरह आजकल ये फैसल बैंक ने ये शुरू किया है। आई थिंक दिस इज करंट, मोस्ट करंट, एंड आई वाज टॉकिंग टू साद एज वेल कि यार इसका हमें कुछ करना चाहिए। सो ये भी ट्रेनिंग कंप्लायंस ट्रेनिंग ऑफिसर्स है और इसकी भी एलिजिबिलिटी फ्रेश ग्रेजुएट्स है और गुड इंटरपर्सनल स्किल्स है, प्रायर एक्सपीरियंस इज नॉट नेसेसरी। सो अगेन this is for the young, or this is for all the fresh graduates. So again, when we talk about fresh graduates, so आप you can see कि यार pool of competition जो है वो कितना बड़ा होगा। So and just to give you and I'm just talking about 2021 and again obviously inshallah ta'ala I'm hopeful कि ये trend 2022 में भी रहेगा। These are just 3 banks, we have got roughly 30 to 35 banks in Pakistan. So हर बैंक को अपने अपने कंप्लायंस ऑफिसर्स के प्रोग्राम की जरूरत जो है वो हर वक्त रहती है। तो जस्ट टू गिव यू कि यार इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, किस तरह आपने जो है वो इस प्रोग्राम का या किस तरह आप इस चीज का पार्ट जो है वो बन सकते हैं। सो when I came into this compliance industry, I come into this compliance area. So मुझे ये अंदाजा हुआ 4-5 साल काम करने के बाद कि यार जो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, एक क्योंकि ऑब्वियसली जब एक स्टूडेंट जो है वो आता है सो उसको इस तरह की एक एक्सपोजर जो है वो हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं दिया जाता कि उसको बताया जाए कि यार कंप्लायंस के अंदर अगर आपने कैसे जाना है, कि अगर आपने या हमारे कोई भी कोर्सेस इस हवाले से नहीं होते। बैंकिंग का एक आधा कोर्स हमारा होता है बट वो भी जनरली दूसरी बैंकिंग के टॉपिक्स जो है वो कवर कर रहा होता है कि आपने चेक को किस तरह क्लियर करना है या टाइप ऑफ चेक कौन कौन से हैं, टाइप ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है उसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जो कोर चीजें हैं उनको डिस्कस नहीं कर रहे होते। सो ये एक बहुत बड़ा आई फेल्ट कि एक बहुत बड़ा गैप है कि यार जहाँ पे एकेडेमिया और जो हमारा इंडस्ट्री है उनका कोई ऐसा कोर्स नहीं है, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो कि हमारे आने वाले फ्रेश ग्रेजुएट्स को या ऑब्वियसली जो कि फ्रेश नहीं भी हैं, जिन्होंने किसी और इंडस्ट्री में काम किया है या बैंकिंग के अंदर उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है, तो हाउ दे कैन वी कैन ब्रिज दिस गैप जो एक जिस तरह मैंने कहा कि हजारों की तादाद में रेगुलेशंस हैं। सो उसको किस तरह हम ब्रिज किया जाए, किस तरह हम उसको एक 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 प्रोग्राम डेवलप करें जिसकी बेसिस के ऊपर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको गो थ्रू करें, उनका वो पार्ट बने और उसके बाद उनकी ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी जो उनकी जो एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बैंकिंग की है कि कंप्लायंस ऑफिसर किस तरह बनना है, क्या उसके आप कह सकते हैं एसेंशियल्स हैं, तो उसको हम किस तरह लेके चलें। So then we decided this and developed this course and this course is the most comprehensive and one of its kind. इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर 1-2 महीने का 3 महीने का वीकेंड क्लासेस जिसके अंदर आपको तकरीबन 36 आवर्स जो हैं, तकरीबन 72 आवर्स क्रेडिट आवर्स की आपको ट्रेनिंग दी जाए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम कंप्लायंस के ऊपर बात करें। So there is none course available in the Pakistan at the moment. This is the first time that I, along with other compliance heads, we developed that, and we already had a badge जो कि हमने थोड़ा इंडस्ट्री के लोगों को लेके किया था just to test it out. So we had a badge जिसके अंदर हमारे पास तकरीबन 7-8 बैंक्स से हमारे पास उसमें participants थे and we run that course. So this is the most comprehensive, most updated course available program in Pakistan at the moment. You will not find any other program of this span, of this quality in Pakistan when it comes to compliance. Obviously, this is taught by current compliance heads and regulators. So we brought in regulator as well. State Bank के लोग भी हमारे पास थे, compliance heads जो दूसरी जगह काम कर रहे हैं उनको भी हम लेके आए ताकि अगेन जो इंडस्ट्री के साथ एक कनेक्शन का हमारा ऑब्जेक्टिव हम उसको अचीव करें। This course basically covers all aspects of compliance. We provide you practical training के how to, अगर आपको इस कोर्स के बाद अगर आपको कोई पहले दिन आपकी जॉब की पोजीशन पे बिठा दे, सो आपने अपनी जॉब कैसे करनी है। You will know from day one. You will not look into your colleagues. You will not look into your person sitting next to you यार कि यार मैंने क्या करना है। You know
कि मैंने किस तरह अपनी जॉब स्टार्ट करनी है, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड यू विल स्टार्ट। और इस सब को अचीव करने के लिए इसलिए वी मेक इट श्योर कि यार ये 1 दिन का 2 दिन का प्रोग्राम ना हो, बल्कि वी आस्क यू टू बी पार्ट ऑफ इट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, जो कि हम वीकेंड की क्लासेस होती हैं। सो 8 से 10 क्लासेस, और ये क्लास जो है वो आपकी तकरीबन 3 आवर्स से ज्यादा की या 3 आवर्स की क्लास होती है। तो यू कैन सी कि यार उसमें इतना ज्यादा टाइम और इतना ज्यादा उसके अंदर जो क्लासेस हैं वो तकरीबन 10 वीक्स आपके ये बन जाते हैं, 2 हफ्ते के अंदर 9 to 10 वीक्स बन जाते हैं। और अगर एक क्लास जो है वो आपकी 3 घंटे की है, तो कितना ज्यादा आपकी एक इतने ही आप अपनी जो कोर्स करते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी का एक सेमेस्टर का, सो आपकी पूरी एक यूनिवर्सिटी सेमेस्टर जितना हम कोर्स आपको 8 से 10 हफ्तों में करवा के, सो और ये कोर्स अगेन एज ए सेड कि ये एक प्रैक्टिकल कोर्स है। ये कोर्स जो है वो आपको इट विल हेल्प यू टू बी अंडरस्टैंड द बैंकिंग इन अ बेटर वे। एंड अगेन ना सिर्फ आपको बैंकिंग के कंप्लाइंस को एक अंडरस्टैंड करने में मदद देगा, बल्कि आपको एज अ बैंकर, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि ये पूरी की पूरी कंप्लायंस क्या होती है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाना। तो जब आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होगा तो आप किसी भी जगह पे जाएंगे, सो दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग द बैंकिंग इंडस्ट्री, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस, और वो सारी की सारी चीजें आपको कनेक्ट करने के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। सो other details of the program after the program Saad can share with you, that how we can move forward and all those things. So this program, as we run it first for the industry, now we are bringing it to the to our young bright people who are going to just pass from their universities, or they are in the process of completing it, or they have completed it and they want to be now part of the industry. So this course is for all of you. Rest of the details Saad can share with you. So I can wrap up. I was given this 45 minutes, so I can now wrap up. So now if you have any questions, any queries about anything that we have discussed, so please feel free to add to it. Thank you so much for your precious time, sir. Thank you, Kashif. We were बिल्कुल जो है ना unaware थे इस fields के regarding, so it was a really grateful session as well. So, sir, I just have a question. In case like if we go and indulge in this course, then at the end, is there any sort of surety like you are able to get a job or something like that? Okay. So Kashif, honestly, jobs we do not commit to anyone, right? Because obviously jobs are you can say embed, वो हमारे embed से बाहर निकल के बात आ जाती है, ठीक है? Obviously yes, but what we can do for you, again, एक तो you are part of that particular community, as I said, कि आप जितने भी आपके ट्रेनर्स होंगे वो सारे के सारे आपके कंप्लायंस हेड्स होंगे, रेगुलेटर्स होंगे, सो वो आपको एक इंडस्ट्री इनसाइट जो है वो बता सके। देन ऑब्वियसली यू विल बी पार्ट ऑफ आवर इंटरनल ग्रुप, जहाँ पे हमारी जॉब एप्लीकेशंस या जॉब पोस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। देन ऑब्वियसली हम आपको वी विल ट्राई फॉर एटलीस्ट योर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, कि आप लोग बैंक्स में इंटर्नशिप रखें। और जो सबसे बड़ा मैं आपको दूंगा कि जिस तरह भी मैंने आपको दिखाया कि आपका ये जो कंप्लायंस के जो बैजेस आ रहे हैं, तो जब आपको एक चीज़ का पता होगा, आप जब इंटरव्यू में बैठोगे तो आप एक बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड एक होगे, क्योंकि आपने 2 महीने एक चीज के बारे में पढ़ा है जिसका आपसे बैच जो है, या जिसका जो है वो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो आपकी तरफ आ रही है। सो ये आपको प्रिपेयर करेगा। अगेन उसमें हम इंडस्ट्री की बात करेंगे, उसमें हम मार्केट की बात करेंगे, उसमें हम इंडस्ट्री के अंदर चैलेंजेस क्या हैं, इंडस्ट्री उसको किस तरह मैनेज कर रही है, सो उसकी हम बात करेंगे। सो जब आप अपने जॉब इंटरव्यू में कल बैठोगे किसी जगह पे भी, सो यू कैन आंसर द क्वेश्चंस इन द सेम लैंग्वेज द आंसर सपोज टू बी आंसर। आप एक तैयार प्रोडक्ट होगे एज कंपेयर टू अ स्टूडेंट जो के जिसने शायद इस एंगल से एस्पेक्ट्स, जिस तरह भी हमने बात की और जिस तरह हमने शुरू किया था, कि ज्यादातर लोगों के लिए बैंकर जो है वो वही बंदा है जो कि ब्रांच के अंदर काम कर रहा है, लेकिन आज हमने एक और उसका साइड भी देखी। सो वो भी एस्पेक्ट आपको इस प्रोग्राम के बाद जो है वो मिलेगा। जी ठीक है। Just to Okay, add obviously. on,
Yeah, please. So just to add on to this from Atletica's side, so like Shamil bhai already shared कि हमारा ज़्यादा focus ये है कि you get the mentorship, you are with those people, and then you get to apply this in the form of an opportunity in terms of internships. जो लोग आप में से job ready हैं, एक तो जैसा शामिल भाई ने कहा कि you will be able to ace the process, but we will also be sharing opportunities, and Atletica as a platform also helps in placements. So we do, जैसा हमने पहले mention किया, we are working with हमारे पिछले भी जो बैच था उसमें 8-9 बैंक से आए थे, तो हमारी और इन बैंक्स में भी लोगों की ये कोशिश है कि because it's a specialized function, so they, obviously as compared to a fresh student, they prefer people who are ready to hit the road running. They are more prepared. उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में कम खर्च करना पड़ता है, यू नो द टाइम कम लगता है इन बच्चों को पिकअप करने में जो कि थोड़े प्रिपेयर्ड आते हैं. सो डेफिनेटली हमारी कोशिश ये है कि हम एक टैंजिबल आउटकम आपको डिलीवर कर सकें इसके एंड पे फॉर दोज हु क्लियर द कोर्स. ये भी नहीं कि हर एक के लिए जो कोर्स में सिर्फ एनरोल करेगा, बट जो क्लियर करेगा कोर्स को, हमारी पूरी कोशिश होगी. वी डू हैव अ डेडिकेटेड बैंकर्स फॉर बैंकर्स ग्रुप एज वेल, जिसमें 200 इंडस्ट्री के लोग हैं. So you will become part of that, plus dedicated WhatsApp group जो हमारा regulatory compliance officers का है. So we will be making sure that we give you all the projection and we bring the opportunities to you. Of course, you will have an edge going into the process, but you'll have to go through the process to actually be successful. Exactly. Thank you so much, Saad साहब. I guess I have seen you in earlier, like शायद अमल अकेडमी में थे आप. बिल्कुल ऐसे ही है. बिल्कुल. I was heading operations at Amul before. ठीक. Thank you so much, sir. बहुत अच्छा. Thank you. So any other participant, any other questions? And feel free to contact Saad as well after the session as well. I think he and his team are more than willing to answer any of your queries and answer any of your things that you want to add. So even after that, you want to ask any questions, so we are welcome. We are over here to support, and we are over here to answer any of your queries. Thank you so much. Thank you. So anyone else, any other member, any other participants want to say anything or they want to add to anything? Okay, sir. So first मेरा क्वेश्चन जो है काशिफ वाला ही था जो आपने क्लियर कर दिया. माय सेकंड क्वेश्चन इज कि गोइंग फॉरवर्ड अगर इसमें एनरोल करते हैं इसमें, तो उसमें जो एक एक्सपीरियंस जो है बैंकिंग सेक्टर से जो कि कर चुके हैं उसमें जॉब, उनके लिए क्या इंसेंटिव होगा, उनको क्या एज होगा एज कम्पेयर टू ए फ्रेश ग्रेजुएट? Okay, so Bilal, Bilal, देखो आपने obviously if you have been part of it, so आपको एक ज्यादा अच्छा अंदाजा होगा कि यार कंप्लायंस का जो एक बैंक के अंदर रोल होता है वो क्या होता है. ठीक है, आपका हो सकता है आपका इंटरेक्शन हुआ आपके कंप्लायंस के कलीग के साथ, आपने उनके साथ बैठ के काम किया हो या आपको पता हो कि तो सो वो उनका आपको अगेन एज ए सेट कि अगर आपने इस फील्ड का पार्ट बनना है, आपको हो सकता है बैंकिंग के बारे में तो अंदाजा हो, लेकिन अगर आपने उस कंप्लायंस के दुनिया का एक पार्ट बनना है, कंप्लायंस की दुनिया में आना है, सो या तो आपके पास एक्सपीरियंस हो जो आपको ऑब्वियसली व्हेन यू विल पार्ट ऑफ इट तो आपका, या अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है सो आपके पास वो नॉलेज हो, आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग हो, जिसकी बेसिस के ऊपर अगर आपने लेट्स से कोई कंप्लायंस के अंदर आपको एक जॉब नजर आती है, आपको कंप्लायंस के डिपार्टमेंट के अंदर आप एक बैंक में काम कर रहे हो, आपने वहां मूव करना है, सो आप अपने एम्प्लॉयर को, अपने डिपार्टमेंट को बता सकते हो कि जी मैंने एक कोर्स किया था, ये उसके कंटेंट्स थे, ये मैंने उसके अंदर पढ़ा है, सो यू कैन गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, गिव मी अ चांस. और तो ऑब्वियसली एक ऐसा बंदा जिसने, लेट्स से दो लोग, एक आप हो और एक ऐसा बंदा जिसने ये कोर्स जो है वो नहीं लिया हुआ या जिसको उस तरह की नॉलेज जो है वो नहीं है. सो व्हेन यू सिट इन एन इंटरव्यू और आपसे सवाल पूछते हैं, सो द वे यू रिस्पॉन्ड टू इट, द अंडरस्टैंडिंग या इन डेप्थ आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो, सो दैट बेसिकली टेल्स यू कि आपके पास उस चीज की कितनी नॉलेज है. और ऑब्वियसली हम ये बात करें इंडस्ट्री एंट्री जॉब्स की, सो वहां पे हम
ऐसे बंदे की बात नहीं कर रहे जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, नहीं। वहां पे आपकी जो नॉलेज है वही टेस्ट की, उसी को टेस्ट करके आपको कोई जो है वो जॉब के लिए सिलेक्ट करता है और कोई जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं करेगा। वहां पे आपका कोई एक्सपीरियंस ऑब्वियसली, जिस तरह मैंने आपको दिखाए फैसल बैंक के, यूपीएल के, सो वहां पे उन्होंने ये नहीं कहा उन्होंने कि आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो। वहां पर उन्होंने कहा फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, और जब फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो सारा पूल है, सो उसमें से डिफरेंशिएशन किस तरह होगी। अगर आई एम टेकिंग एन इंटरव्यू और लेट्स से यू आर टेकिंग एन इंटरव्यू, सो डिफरेंशिएशन आप उसी तरह कर सकते हो कि जब आप उनको बताओगे या आप उनको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो थ्रू योर डिग्रीज, थ्रू योर सर्टिफिकेशंस, थ्रू योर नॉलेज, कि आई हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस थिंग, and my understanding level is better than my competition. So this is how this thing can support you, because if you want to be part of compliance and you are not previously part of it, so आपके लिए वो एक नई ही फील्ड होगी, और जब आपके लिए नई फील्ड होगी, so all the contestants will be equal in that. Okay, thank you, sir, and that sounds great. So thank you for the informative session. मैं Thank इसमें you, जरूर Bilal. look into करूँगा. Sure. Thank you, Bilal. Thank you. Any other member want to add anything? Okay, so thank you. Saad, I think over to you. You can wind up this session. We are almost up. In fact, we are up. So thank you and Happy New Year. I wish you a very good New Year and all your things that you are planning to do with regards to your career, with regards to your studies. So I hope, and inshallah ta'ala, my prayers as well, that you achieve in year 2022. So over to you, Saad. Inshallah. Thank you very much, Shamil Bhai, and thank you everyone for joining in. It was a very informative session. And New Year hai, I do understand that it's a time to celebrate, but I hope it's also a time to take control of your learning. हम हमेशा ये कहते हैं, और मैं जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि बी सेल्फिश अबाउट योर लर्निंग। एंड हमारा एटलेटिका में फोकस ये है कि हम बड़े टेंजिबल आउटकम वाले कोर्सेज और स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रेलिवेंट लोगों तक लेके जाएं। सो वी ट्राई टू डू अ मैच मेकिंग। और जो रेगुलेटरी कंप्लायंस का ये कोर्स है, एक बड़ी स्पेशलाइज कोर्स है, और ये बहुत उन लोगों के लिए है जो वाकई बैंकिंग में और ख़ास तौर पे एक ग्रोइंग सेक्टर विद इन द बैंकिंग, ग्रोइंग फंक्शन विद इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। सो आज जो भी लोग आए हैं, वी विल बी रीचिंग बैक टू यू। हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। विल बी शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स कंटेंट, द इंस्ट्रक्टर्स, जो और लोग हमारे साथ इंस्ट्रक्टर्स होंगे, जो पूल होगा हमारा उसके अंदर। इसके अलावा हम उन तमाम लोगों को भी आपसे मुलाकात का मौका देंगे जो पहले से गुजर चुके हैं और HBL, फर्स्ट वुमेन बैंक, बैंक ऑफ चाइना, ICBC, UBL, मीज़ान, NBP फंड्स, इन सब से बिलोंग करते हैं। सो वी डू हैव अलमनाई नेटवर्क फ्रॉम दिस कोर्स जो कि वेल सेटल्ड है, जो सीनियर पोजीशंस पे भी है। जैसा हमने कहा, हमने प्रीवियसली इंडस्ट्री के लिए रन किया था, बट हमारी कोशिश ये है कि हम कंप्लायंस चैंपियंस जो है वो अब स्टूडेंट्स, फ्रेश ग्रेड या 1-2 साल का जिनका एक्सपीरियंस है उनको मौका दें, बिकॉज दिस फील्ड रिक्वायर्स सम करियर बैंकर्स जो लॉन्ग टर्म चल सकें इसके अंदर और ग्रो कर सकें। और आपके सामने शामिल भाई की एक एग्जांपल है। ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द यंगेस्ट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स इन द इंडस्ट्री। इस वक्त 47 बैंक्स हैं पाकिस्तान में, एंड दैट गोज टू शो कि अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करें अपने अंदर और अपनी लर्निंग के अंदर, तो यू कैन गो लॉन्ग वे एंड यू बिकम अ हॉट केक। सो आई होप आप लोगों में से भी लोग जो हैं वो बनते हैं, बैंकिंग में आते हैं, इसको परसू करते हैं। मेरा अपना पर्सनल बैंकिंग के साथ एक खास ताल्लुक रहा है। सो आई वॉज प्रीवियसली अ बैंकर, for those of you who don't know. So I hope आज के जो attendees थे, जो in person ये अभी हमारे Zoom sessions पे हैं और जो Facebook Live पे देख रहे हैं, they have taken information from today. उसको आप process करें. Our team will be reaching out to you for any queries, and feel free to reach out to us for any queries that you may have कि इसकी job opportunities, हम placement में Adletica itself कैसे help करता है। चंवेल भाई ने तो आज आपको excuse me,
शामिल भाई ने आज आपको कोर्स का बताया, बट एडलेटिका इटसेल्फ कैसे प्लेसमेंट में हेल्प कर रहा है, और हम जॉब्स में और हमारी कंपनी किन कंपनीज के साथ MOUs हैं जहां हम बच्चों को अपने प्लेस करवा रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स वी टेक फुल गारंटी फॉर हमारे जो लर्नर्स वहां जाके परफॉर्म कर सकते हैं. सो इस बारे में भी विल बी रीचिंग आउट टू यू, एंड आप लोग के साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे, and we'll try to make this a very fruitful and a journey with a tangible outcome, कि इसके एंड के ऊपर लर्निंग के साथ साथ आपको एक tangible outcome मिले in the form of internships, jobs, placements, and a fruitful career. So thank you very much for your time, everyone. I hope you have had a great session, and happy new year to all of you from Atletica's side. And हमारा 8 जनवरी को शेड 99 में एक सेशन हो रहा है, इवेंट हो रहा है लाइव, जहाँ पे वी हैव ऑल द कंपनीज जो हमारी पार्टनर्स हैं वो वहाँ पे आएंगी, उनके CEOs आएंगे, उनकी टॉप मैनेजमेंट आएगी आप लोगों से बात करने के लिए, एक सॉर्ट ऑफ इट विल बी अ नेटवर्किंग इवेंट. सो प्लीज जरूर आइएगा, हमारे फेसबुक पेज को देखते रहिए, उस पर इवेंट डिटेल्स आ रही होंगी, एंड विल लुक फॉरवर्ड टू होस्टिंग ऑल ऑफ यू देयर. Thank you very much once again. I'll close the session with a note of thanks to all of you, and a happy new year. Thank Allah you. Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you for your time. Thank you.